Hello, friends. A very warm welcome to Ansarkari. And in this session, again, I'm going to pick up so important themes and ideas which are going to help you to create your ecosystem and vibe with respect to not only general studies but also with respect to different option subjects. Now, when we speak about chopper operations in Uttarakhand, now it is not just about choppers in Uttarakhand. If you think about Gujarat, then there will be marine, marine transport would also be there. If you speak about Mata Vaishno Devi, if you speak about, uh, sites in Madhya Pradesh, everywhere we need a policy. So is it a policy problem? The chopper operations in Uttarakhand, if it is a policy problem, then it must be solved with a modern positive outlook. For example, royalties imposed on landing and capping of ticket prices, which are meant to be on par with the pony rides. Private operators race to complete as many sorties as possible to maximize profits. Now, this is a policy problem. Local businessmen, local people, if they believe that only by choppers, if they are going, then whole business will be collapsed as far as ponies and other things are concerned. So, three, four key points. The rule for the private operators, if it is capping fares, imposing royalty, capping pilot workload, mandating free flights, and rules for taking breaks. This is not just for these choppers. I would like you to make a 100 words short case study with respect to transport policy, whether it is Mansa Devi, whether it is Vaishnu Devi, whether it is, like, do not think only in terms of chopper. Try to create a policy framework where livelihood and safety is not compromised. Moving further, how India-Armenia alliance is paying off amid is Iran-Israel crisis. Do look at the map very carefully. Prelims के लिए बहुत important है. And the Delhi-Yerevan ties are very, very strong because Turkey-Pakistan ties are strong. In the similar manner, our ties are also very strong. So you can say that Iran's borders with Turkey and Azerbaijan, both of whom professed overt support for Islamabad during Operation Sindoor, India's relations with Baku and Istanbul have taken, a negative side, whereas India does not have any official ties with the Taliban with Afghanistan. But the countries from which you can say India can take support in case of evacuation, they are Turkmenistan, Iraq, and Armenia. Now, Iraq's border with Turkmenistan is very sparsely populated, especially on the Iranian side. Therefore, there are logistical challenges. But the Iran-Armenian border is thus the most viable option, as you can see on the screen also. Please do make sure for the prelims, I'm telling you. It is very, very important for the prelims, you have to see that. Now, revisions in base year. In methodology of estimating GDP, it has the ultimate objective to provide a clear picture of the state economy. तो पीटी के लिए आपको पता होना चाहिए कि जीडीपी अगर रिवाइज ईयर किया जाएगा, बेस ईयर क्या रखा जाएगा, पहले वाला क्या था, और दूसरा जो सामने हमारे वेटेज परसेंटेज में डिफरेंट सेक्टर का जो चार्ट है, ओल्ड वर्सेस न्यू, यानी 2011-12 सीरीज और 2004-5 सीरीज के जो ये सेक्टर्स दिए हुए हैं, ये आपको एग्जैक्टली पता होने चाहिए. MSMPI का, मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट. और ये पहला रिविजन नहीं है, दिस इज द 8th सच रिविजन. India was you can say GDP for the first time was compiled under PC Mahalanobis in 1949. The first and final report of this committee was brought in 1951 and 1954. So this is very important with respect to National Income Committee. So what you have to see that how for the mains examination की regular revision help कैसे करेगा, changes पता लगाएगा, new industries होंगी, उसके बाद more accurate और real picture देगा. बेस ईयर से गवर्नमेंट को कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे से पता चलेगा, एज वेल एज पीरियोडिक लेबर सर्वे से पता चलेगा, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से कि एक्चुअली में एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वो कैसे है. So that is why you can say not only just about quality but also about quantity. Both the things are very important. साथ में जो एक और हमारा चार्ट है, how nominal GDP in rupees change between old and new series. So nominal GDP, real GDP, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने इकोनॉमिक्स में कवर किए हैं. प्लीज डू लुक इनटू इट. व्हाट्सएप ने ऐड इंट्रोड्यूस किए. सो व्हाट वी कैन से, व्हाट स्टैंड अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप क्या कहोगे? इट इज लेजिटिमेट, इट इज लॉजिकल एंड इट इज लीगल. हाउएवर इट इज मे बी अनएथिकल, बिकॉज उन्होंने हमेशा ये बोला था कि वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग लाइक दैट एंड इट इज अबाउट प्राइवेसी, इट इज अबाउट पर्सनल मैसेजिंग, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया. What is collapsing in Gaza is not just infrastructure. It is the principle that even war has rules. When those rules are waived for allies, no one is safe. आई रिपीट, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एथिकल स्टेटमेंट है. मेंस के एग्जामिनेशन में ऐसे में आप यूज कर सकते हैं. और इवन आपका जो माइंडसेट है, अगर आप इंडिया के इंटरेस्ट की, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात करते हैं, तब भी आप ऐसे पॉइंट को ले सकते हैं कि जब आप रूल्स, वॉर के अंदर भी रूल्स होते हैं, अगर उनको भी आप ब्रीच करेंगे और अपने एलाइज के लिए वो
वेव कर देंगे तो नो बडी इज सेफ। सुहास पलिशकर सर ऑलवेज राइट्स समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने कहा कि एक गुड ओल्ड कन्वर्सेशन यानी कि एक बातचीत का माहौल होना चाहिए। ऑल पार्टी डेलीगेशन वर्ल्ड कैपिटल में चला गया और गवर्नमेंट के लिए स्पेस तो बना, और एंड अपोजिशन जो है उसको भी चाहिए कि उसको भी वो अपॉर्चुनिटी मिले, उसको भी वो मौका मिले, और दोनों मिलकर जो हमारी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स है, उनको आगे बढ़ाए। 11 लंबे सालों में there have been very few occasions of cooperation between the top leadership, the ruling party and the opposition. तो इतने साल एक्यूमोनियर डिस्ट्रस्ट के बाद आप कह सकते हैं कि इंटायर अपोजिशन ने ऑपरेशन सिंदूर को सपोर्ट किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर्टेन टू स्पेसिफिक केस ऑफ द करंट कोऑपरेशन, कि अगर डिप्लोमेटिक कूप जो इन्होंने मल्टी पार्टी डेलीगेशन भेजा, तो हमने पूछा कि भाई आप इंटायर जो इस्टेब्लिशमेंट है, व्हाई इट बिकम सो सेंसिटिव बोथ ड्यूरिंग एंड आफ्टर the May conflict that a number of minor criticisms are being branded as inappropriate, anti-national or seditious. तो होना चाहिए। देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ पार्लियामेंट्रीज हु वेंट अब्रॉड हैविंग आस्क्ड दिस क्वेश्चन बिफोर जॉइनिंग द डेलीगेशन। तो यानी पॉइंट वही है कि टफ क्वेश्चनिंग सामने होनी चाहिए, ओपननेस की बात होनी चाहिए, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन सिर्फ दिखना नहीं चाहिए, वो होना भी चाहिए, और वो एक तरीके से मैच फिक्सिंग एक्सरसाइज की तरह नहीं लगना चाहिए। सो issue is not about India's international image alone. It is about routine exchange of ideas and exploration into possible areas of non-acrimonious politics. So the PMs have reported view that such practice of all party delegation need to be institutionalized. ये जो है सिर्फ फॉरेन पॉलिसी में नहीं, ये बाकी डोमेस्टिक पॉलिसी में भी होना चाहिए। तो देयर आर एटलीस्ट 3 टेक अवे जो सर ने कहा। पीएम कैन थिंक ऑफ इनिशिएटिंग डायलॉग विद द ऑपोजिशन। वन इज वेरी जनरल डायलॉग कि भाई इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होना चाहिए, वरना ऑपोजिशन डिमांड कर रहा है कि देयर मस्ट बी स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट, जब तक नई बात हुई है। क्राइसिस ड्रिवन जो कन्वर्सेशन है वो हमेशा कामयाब नहीं होगी। आपको कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को बातचीत करनी चाहिए। मणिपुर है, उसके बाद जो है डिलिमिटेशन है, या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग रेलेवेंस टू डेमोक्रेसी जैसी बातें हैं, क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, ये सारी बातें भी होनी चाहिए। यानी कि जेस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जेस्चर सिर्फ लिमिटेड नहीं होने चाहिए। जेस्चर्स जो है ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, जेस्चर्स ऑनेस्ट होने चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? So this is with respect to multiple opportunities are there for the prime minister and for the PMO also, and जो acrimonious politics है वो हमें benefit नहीं करेगी। That's what we can say. Election Commission doesn't share adequate voting related information with people that prevents a meaningful analysis of electoral process. आप ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो एंटी आई शुड से इलेक्शन कमीशन की अगर मैं बिहेवियर और उसके प्रिंसिपल्स की बात करूं तो उस पे है, लेकिन हमें सारा ये ऐसे नहीं लिखना होगा। हमें देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन में जो लैकुनास हैं, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात आती है, वो कैसे हो पाएगा। इन a total number of vote recorded on a polling day and the total number of registered voters, तो जो सारा का सारा जो रियल टाइम वाली चीजें हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चाहिए कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के साथ साथ उसको और ट्रांसपेरेंट और उसको और ऑनेस्ट रखे। सो देयरफॉर सिटीजन्स जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस में जो इंटरेस्टेड हैं उनको फॉर्म्स देखे जाने चाहिए पोलिंग बूथ और सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, ताकि उन्हें इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस पे मतलब विश्वास हो सके। सो इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये एक रिफॉर्म का पार्ट है rather than अदर वे राउंड। Now, the Trump's blind backing of Netanyahu is taking a toll on the US. Why we are saying so? Because US not is just a world leader; it is a world's one of the greatest democracies, and also it must promote ethical governance, जो कि मिसिंग है। So that is why जो gains हैं वो लूज हो जाएंगे, और मेड अमेरिका जो ग्रेट अगेन की बात है, ऐसे ग्रेट तो नहीं होगा कि मतलब आप जो है हाँ, पूरा अलाउ कर दें इसराइल को जो गाजा के साथ हो रहा है, या जो अभी जो रॉ स्टेट जो एक टर्म है जिसको आप इसराइल के लिए यूज ही नहीं करने देंगे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सो रॉ स्टेट्स आर बिलीव नॉट टू फॉलो इंटरनेशनल रूल्स एंड नॉर्म्स, टू सपोर्ट मिलिटेंट एंड टेररिस्ट ग्रुप्स एंड टू बी डेंजरस टू अदर नेशंस। रॉ स्टेट्स एक्सेस ऑफ इविल, वो सब तो आपने अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने ईरान और साउथ कोरिया इन सब के लिए लागू कर दिया, चाहे फिर वो क्यूबा, अफगानिस्तान, वेनेजुएला, नॉर्थ कोरिया, इन सब की आप बात कर सकते हो। लेकिन व्हाट अबाउट इसराइल? सो परसिक्यूशन, किलिंग, न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी भी उनके पास है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। वो नॉन स्टेट एक्टर्स को भी सपोर्ट कर सकते हैं, असैसिनेशंस भी करते हैं। तो अमेरिका सॉफ्ट पावर इज, इसीलिए आप कह सकते हैं कि इट इज एट आर्गुमेंटली द लोएस्ट पॉइंट, स्पेशली जो अमेरिका इज डूइंग विद द यूनिवर्सिटीज। So Israel's reprisal for October 7, 2023 terrorist attack by Hamas has claimed 55,000 lives. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम ऐसे लिखते हैं या हम एथिक्स में जब केस स्टडी लिखेंगे, तो हम इंडिया की पर्सपेक्टिव जब हम बात करते हैं तो हम यही कहेंगे कि ये सॉल्यूशन नहीं है। लॉबी होनी चाहिए, लेकिन लॉबी जो है वो इस तरीके से आपको कभी भी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सपोर्ट नहीं दे पाएगी। जैसे इंडिया हमेशा कहता है कि गो फॉर व्हाट इज राइट, आप उस पर्सपेक्टिव से इसको देखिए।
Coming again, what if the US joins Israel war against Iran? तो वही वाली बात है, if it is going to join, there will be more chaos and Middle East के अंदर जो है और ज्यादा chaos होगा, पूरे वर्ल्ड के अंदर स्टेबिलिटी को धक्का लगेगा। और आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इंटरनेशनल गवर्नेंस सिस्टम है, वो कोलैप्स हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई यू कैन से कि ईरान इज अ nation which may be having its own vested interest, but what about other factors? So US intervention will not remain just the US intervention. Arab nations will also be looking very very skeptically if it is going to happen like that. और सबसे बड़ी बात यह है कि if Iran is saying that we are being pushed to the wall, then everybody has their own view and everybody has their own way of thinking and life. तो डेथ तो अमेरिका बोलने से सिर्फ अब अमेरिका उसको खत्म कर दे ऐसा नहीं सकता, बट देयर विल बी क्योस। और इतनी आसानी से आप सब कुछ नहीं कर पाएंगे, अमेरिका के इंटरेस्ट हैं मिडिल ईस्ट में, वो भी जो है ढंग से नहीं हो पाएंगे। विच कार मॉडल इज द मोस्ट पॉपुलर इंडियन रोड्स? तो जैसे हमने पहले भी बात की थी कि टाटा नेक्सॉन है और hyundai क्रेटा है, मारुति सुजुकी वैगन आर सबसे ज्यादा, यानी 88,000 से ज्यादा बिकी है, सुजुकी डिजायर, सुजुकी स्विफ्ट, मारुति ब्रेजा, मारुति सुजुकी अर्टिगा, मारुति सुजुकी बलेनो, एंड देन इट कम्स टू Tata Nexon, and then Maruti Suzuki Eco, and then Hyundai Creta. So this is how Maruti Suzuki has ruled the auto market this year with 8 of the top best-selling models for it. Again, जैसा मैंने आपसे कहा कि ईरान की जो फैसिलिटीज हैं, अगर इसराइल हिट करता है तो अभी क्वेश्चन ये उठता है कि जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, अगर वो सिविलियन पर्पस के लिए भी हैं, तो क्या आप उनको वैसे ही अटैक कर दोगे? देयर मस्ट बी सम रूल, देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ सिस्टम, क्योंकि अगर ऐसा एक बार होगा तो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक और आप समझ लो कि इट इज लोएस्ट एब, और उसके बाद जो है न्यूक्लियर कैटेस्ट्रॉफ की बात, जैसे अब खुद रशिया इज टेलिंग यूएस नॉट टू स्ट्राइक ईरान वांट्स ऑफ न्यूक्लियर कैटेस्ट्रॉफ। तो अब वही बात है कि ईरान जो है अपने आप में एक क्राइसिस मोड में है, लेकिन क्या वाकई यूएस इज गोइंग टू फाइट? सो वी कांट से लाइक दैट, अभी हम नहीं कह सकते हैं। ट्रम्प जो है वो हमेशा से कहते आए हैं कि वॉर्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प, इंक्लूडिंग इन अफगानिस्तान, इराक, एंड इवन इन लीबिया। आर्म फोर्सेस ग्रुप्स इमर्ज आफ्टर वॉर एंड नेबरिंग कंट्रीज दे बैक लोकल प्रॉक्सीज। तो ये यहाँ पर भी हो सकता है। तो इसलिए यूएस बेसिस इन द रीजन आर एट heightened alert, and US is shifting military jets and ship in the region. तो आपको एक broad analysis लेना है rather than going into very specific facts. Modi reminds Trump no trade talk or US role in Sindoor pause, declines his invite. So this is something which we can say is amazing on our part, that our government, our prime minister is actually representing the true pictures and the ideas. And even when the Pakistani army chief is meeting the US president, then this is definitely for our business, but then our long-term thinking, our patience, our way of handling the issues, it remains same. उसमें कोई different आने की बात नहीं है. And this is what you can say is part of the whole our new realistic foreign policy thinking. पर उसमें आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आप इस फैक्ट से बात करें। फैक्ट आपको प्रिंसिपल्स को स्ट्रांग होने का मौका देता है। Nations openly supporting terrorism continue to be rewarded. This is the statement which you must be bringing even in essay, even in general studies paper 1, या फिर अगर बात आती है एथिक्स के अंदर, ये बात बिल्कुल सच है। मोदी सर इज कॉलिंग फॉर ह्यूमन सेंट्रिक एआई अप्रोच, कोऑपरेशन ऑन क्रिटिकल मिनरल्स। सो ये बातें हमने ऑलरेडी डिटेल में डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स में हमने चर्चा की है। एंड ही इज कीपिंग द आइडिया ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन टू कीप द होल ग्लोबल साउथ प्रोवाइडिंग इट लीडरशिप एंड इंपॉर्टेंट एरियाज। Targeting nuclear plants in Iran and Ukraine, जैसा मैंने अभी कहा, it is having a global risk in the age of fragile energy transitions. Very very beautifully written. Even in case of India and Pakistan, the list is always being exchanged, and also we have kept the promise of being transparent as far as that is regarded. So whether it is the Iraq's Osirak reactor in 1981, Syria's Del Ez-Zor in 2007, these instances also reflect a new troubling trend. Civilian nuclear infrastructure is now being treated as a strategic asset. एक रेड लाइन ड्रॉ करनी चाहिए जिसको क्रॉस नहीं किया जाएगा। तो पैटर्न धीरे धीरे ये पूरे वर्ल्ड के अंदर है। आप कह लिए कि इंटरनेशनल लॉ विच प्रोवाइड्स फॉर क्लियर प्रोटेक्शन, आर्टिकल 56 ऑफ द 1977 एडिशनल प्रोटोकॉल ऑफ द जिनेवा कन्वेंशन प्रोहिबिट्स अटैक्स ऑन वर्क्स एंड इंस्टॉलेशंस कंटेनिंग डेंजरस फोर्सेस इंक्लूडिंग न्यूक्लियर प्लांट्स फ्रॉम विच सिविलियन कुड हार्म कुड रिजल्ट। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बहुत सारे रेजोल्यूशन में उन्होंने ऐसा किया है, कंडम किया, लेकिन उनको अभी भी किया जाना चाहिए। इसराइल कैन नॉट बी जस्टिफाइड डूइंग दिस अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। वो ये नहीं कह सकते कि हम मतलब कि
Iran remains a signatory to the NPT. It has consistently maintained its nuclear program for peaceful purposes and it has declared nuclear facilities under IA safeguards. तो कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोच बहुत खतरनाक है, वो टेंशन क्रिएट करती है. नॉन प्रोलिफरेशन रोकने के लिए हमें वैल्यूज को मानना पड़ेगा. स्ट्राइकिंग मॉनिटर्ड साइट्स में सीम प्रिवेंटिव बट इट रिस्क अनरिवीलिंग द प्रेजेंट सिस्टम डिजाइन टू कीप एटॉमिक एनर्जी पीसफुल. अगर वो नहीं करेगा तो फिर आप क्या कर लोगे? So how the countries will have confidence in the multilateral non-proliferation regime that cannot guarantee protection against a unilateral strike? तो सब countries चाहेंगे भाई हम भी फिर न्यूक्लियर पावर बनेंगे. न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट ए बैटलफील्ड. रेडिएशन कैन नॉट बी डेटर्ड. अगर एक बार रिलीज हो गई तो फॉल आउट विल बी स्प्रेडिंग विदाउट एनी बॉर्डर्स और उससे बहुत ज्यादा खतरा होगा. न्यूक्लियर पावर टुडे इज नॉट जस्ट अबाउट वेपन्स, इट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन. More than 30 countries operate civil nuclear energy reactors and many more are investing in nuclear power to reduce fuel reliance. तो क्या होगा फिर? वर्ल्ड बैंक खुद अब शिफ्ट करके उनको प्रमोट कर रहे हैं, जबकि वर्ल्ड बैंक इज नॉट अ सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन. वो वेस्टर्न वर्ल्ड का एक मायोपिक व्यू है. इंडिया का खुद गोल है 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2047 अप फ्रॉम 8 गीगावाट टुडे. सोचिए फिर क्या होगा, कैसे आप नेट जीरो गोल पर जाएंगे? हम खुद अमेंड करने जा रहे हैं एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज 2010. तो अगर ये चीजें अगर हम नहीं समझेंगे वर्ल्ड में तो कैसे चीजें चलेंगी? सो व्हाट वी कैन से इज दैट India and Pakistan, they have upheld the rare example of nuclear restraint. Since 1991, both have observed agreement on the prohibition of attack against nuclear installations and facilities that was signed in December 1988. आज तक हमारा वो चला है. So that is how it is. लीगल प्रोटेक्शन के साथ साथ मोरल वैल्यूज भी होनी चाहिए. तो इस दिशा में आप सोचिए और फिर कोई पॉइंट लिखिए. Kerala High Court is upholding the rights of transgender couple to be recognized as parents. तो ये अपने आप में बहुत ही प्रोग्रेसिव है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा लिबरेटिंग है, ये अपने आप में हमें सोसाइटी के जब हम आंसर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर हम इस चीज को जरूर कोट कर सकते हैं कि ट्रेडिशनल लाइफ के साथ साथ मॉडर्न आइडियाज का साथ में आना और पूरी सोसाइटी को इंक्लूसिव तौर से आगे बढ़ना कितना जरूरी है इनोवेशन के लिए. Focus on vulnerable ecosystems in revamped Green India Mission is welcome, but improving livelihood is also important. So very very important. Green India Mission जैसे मैंने कल भी परसों चर्चा की थी, चाहे वो अरावलीज है, वेस्टर्न घाट्स है, हिमालयाज है, लेकिन आप एक्चुअली में उसको कैसे करोगे? आप टेक्नोलॉजी के साथ साथ अवेयरनेस, नॉन करप्ट प्रिंसिपल्स और साथ में ब्यूरोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है. वेस्टर्न घाट्स, अरावली, हिमालयाज, दे फेस वेरियस चैलेंजेस. डिफॉरेस्टेशन है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, चेंज इन रेनफॉल पैटर्न है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, अनरेगुलेटेड टेररिज्म है, अनरेगुलेटेड टूरिज्म मुझे कहना चाहिए. तो इन सब चीजों को हम कैसे देखें? तो इसलिए नया डॉक्यूमेंट अगर ये कहता है कि फेलिंग ऑफ ट्रीज हो रही है, इलीगल माइनिंग हो रही है, तो एनजीओस को साथ लेके आइए, आप छोटे छोटे ग्रुप्स को साथ लेके आइए, आप फार्मर्स को साथ में कॉन्फिडेंस लेके आइए. 2 रुपए उनको बचाने से कोई भी फार्मर जो है लॉन्ग टर्म में ट्रीज को नहीं बचा पाएगा. सबको खाना खाना है, सबको जीवन चाहिए. थार डेजर्ट धीरे धीरे एनसीआर के नजदीक ऐसा होगा तो पहुंच ही जाएगा. सो रिस्टोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके लिए जैसा मैंने आपको कहा, माधवीर गाडगिल जो कमेटी थी उसको आप ऑनेस्टली अप्लाई कीजिए. 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर का स्ट्रेच जो वेस्टर्न घाट्स का है उसको 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 ओवरली टूरिज्म और कमर्शलाइज मत कीजिए. और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के साथ साथ आम आदमी को भी उसके अंदर रोल प्ले करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग यू हैव टू ब्रिंग एग्जांपल्स इन सच आंसर्स, जहां पर आप बताएंगे कि कैसे लोकल लेवल के ऊपर स्कूल के बच्चे से लेकर और कॉमन आदमी कैसे अपने आप को सस्टेनेबल लिविंग की तरफ जाता है. तो गवर्नमेंट लॉन्च ऑपरेशन सिंधु टू एवैक्यूएट सिटीजंस इन स्ट्रक ईरान. तो आप पिछले 5 साल में सोचिए इंडिया ने ऐसे कौन कौन से ऑपरेशन किए और उनके नाम आप लिख लीजिए. फिनटेक शुड सी एग्रीकल्चर रूरल एरियाज एज न्यू मार्केट्स. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल सही बात है. तो फिनटेक को सिर्फ पैसा कमाने के लिए इमीडिएटली नहीं सोचना है. फिनटेक को एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के बिना लॉन्ग टर्म कोई भी ग्रेट ग्रोथ नहीं मिल सकती. इंडिया इज गोइंग टू बी द 4th लार्जेस्ट ईवी व्हीकल मार्केट, और साथ साथ में हम लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर भी हो गए हैं. सो हमें बाउंड्रीज को पुश करना पड़ेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो उसके लिए थोड़ा सपोर्ट चाहिए. गवर्नमेंट इज ट्रांसफरिंग 44 लाख करोड़ इन डीबीटी, और उसके बाद जो है सेविंग भी हो रही है. फाइनेंशियल इंक्लूजन जो और आगे बढ़ेगा, जनधन योजना की बात तो मैंने पहले भी आपसे बताई है. तो यूपीआई इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोड, और उसने बॉर्डर भी क्रॉस किया है. इनफेक्ट इस बार तो पीटी में आया भी था. भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई, ये सारे कंट्रीज के नाम यहाँ जो दिए हुए हैं, ये कंट्रीज में ऑलरेडी हमने देखा था कि यूपीआई आया है और यूपी में क्वेश्चन भी आया था. तो मेरा क्वेश्चन यही है कि आप इसमें और छोटा सोचिए और रिलैक्स होकर सोचिए कि कैसे फिनटेक को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, एसडीएम्स कुछ कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, कैसे करेगी, कैसे होगा, ये आप एक छोटा सा बात सोचिए और आप एक छोटा सा शॉर्ट नोट लिखिए. वर्क रिमेन्स वर्कशिप फॉर दिस टर्न अराउंड वेटरन, वेरी इंपॉर्टेंट. नटराजन Srinivasan,
डजंट बिलीव इन फायर फाइटिंग, उनकी लीडरशिप अमेजिंग है। तो इसीलिए एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, देन चोलामंडलम डीबीएस फाइनेंस, श्रीनिवासन वाज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग इट टू न्यू लेवल्स। तो कैसे? कॉम्प्लेक्स रिकंस्ट्रक्टिंग, टफ नेगोशिएशंस, हाई स्टेक लीगल बैटल्स, ये सारी चीजें होती हैं जब आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है। हमें यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हमें ये देखना है कि बिजनेस एक्यूमेन, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर आपको बैलेंस तरीके से सोचना होगा। वर्क रिमेन्स वर्शिप का मतलब ये नहीं है कि आप बेवकूफों की तरह काम करते जाएं, आप टास्क पूरा करें, आप गलती को माने। उसके बाद जो है देखिए, माई ब्लड प्रेशर रियली शॉट अप दोज डेज, एवरी डे आई वुड राइट दिस लाइन टू माई सेल्फ, लर्न टू मैनेज स्ट्रेस विदाउट गेटिंग स्ट्रेस्ड। Now no matter what the problem is, I don't let it affect me. That's the biggest lesson CG Power, it taught Mr. Srinivasan. Meticulous walker, never misses his hour-long morning walks, often accompanied by soothing strains of Carnatic music by favorites like Maharajapuram Santhanam, devotional chants like Narayanam or Vishnu Sahasranam by M.S. Subbulakshmi. He hums along the tunes of old melodies like T.M. Soundarajan. A streak of a time management, begins his day at 3:45 a.m. today. While he works Monday through Saturday, he set aside Saturdays to quietly reflect and plan major studies without interruption, reserving afternoons for family outings to nearby temples or restaurants. I used to play chess, but now there is no time on the other side of the board. Oh, when no one is playing on the other side, his two daughters are living in US and Singapore. Work-life balance is more about work than the balance. If you set out to achieve big things, some amount of compromise in personal life may be required. So it is amazing. When monotony occasionally creeps in, which is rare, Srinivasan find comfort in the quiet hills of Kodaikanal, revisiting classic Roger Federer matches, or simply unwinding with music at home. So, after a 5-year stint in Mumbai to revive CG Power, Srinivasan is now moving to Hyderabad to steer Koramandal International as executive vice chairman. So, these ideas, obviously, we have not discussed in direct ways, but then in our teaching and our training program also, we have discussed so many ideas on these lines. So, for mentoring startups aiming for IPOs to studying Vedas, Upanishads, supporting underprivileged priests with financial aid. So that means we are also thinking in an innovative way, we can learn and we are really proud of it. SEBI board open door for more investments. जैसा मैंने पहले भी कहा था, voluntary delisting of PSUs, the government is holding on 90%. First point है voluntary delisting के बाद church and charitable societies allowed to list on social stock exchanges. बहुत important है, अपने आप में मेंस के लिए सीधा क्वेश्चन ही आता है. Not to merchant bankers, debenture trustees, activities under other regulators चलिए. Custodians have been allowed to other financial services under the same entity. और साथ में 3-4 पॉइंट तो मैं कहूंगा जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का पेपर 2 है उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर के 2 पॉइंट, तो ये 3 पॉइंट आप जीएस के लिए लीजिए, बाकी पॉइंट्स आप ऑप्शन के लिए दे लीजिए. ब्रोकरेज फ्लैग नियर टर्म पेन फॉर बीएससी ऑन एक्सपायरी शिफ्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अब वही बात है कि जब हम चाहते हैं कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ करें तो उसके बाद वही है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है, कैपिटल मार्केट एंड देन मूवमेंट ऑफ लिक्विडिटी, सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वही बात है कि अब यहाँ पर अगर अगर ब्रोकरेजेस जो एक्सपायरी रीअलाइनमेंट में डेंट ट्रेडिंग मैट्रिक्स, तो वही बात है कि ये सारी बात थोड़ी टेक्निकल है कि कितना किसको बेनिफिट है, कौन कितना लेके जाएगा, तो उस पर्सपेक्टिव से आप इसको देख सकते हैं. एंड ऑफ न्यूक्लियर ऑर्डर, ग्रोइंग टेम्पटेशन टू लॉन्च प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स, जैसे मैंने ऊपर अभी बात की एडवर्सरी न्यूक्लियर फैसिलिटीज, तो ये जो है अब न्यूक्लियर ऑर्डर एक तरीके से खत्म करने की बात हुई, जो मैंने आपसे पहले अभी चर्चा की कि भाई अगर मान लो अगर यूएस भी अगर अपना जहाज गिरा के उसको खत्म कर देगा तो उससे क्या वाकई क्या सोल्यूशन होगा, क्या उससे वाकई लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स होंगे. तो वही वाली बात है कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि रियल इम्प्लीकेशंस, रीजनल प्रोलिफरेशंस, या फिर आप सोचिए कि सऊदी अरेबिया अगर पाकिस्तान के असिस्टेंस से अगर वो न्यूक्लियर बम बना ले, फिर आप क्या करेंगे. टर्की भी अगर ऐसा कंसिडर करे और वो भी एनपीटी या फिर बाकी जो भी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स उसको छोड़ दे. सो यानी वर्ल्ड वॉर 2 का जो न्यूक्लियर ऑर्डर है वो अभी स्ट्रेस के अंदर आएगा. लेकिन इंडिया for that matter is definitely had a very strong and a very great leadership role in this direction. That's what we can say. Why gold prices are continuously going up? So very true, it is all about geostrategic जो हो रहा है, फिर उसके बाद uncertainties हैं, और रशिया यूक्रेन वॉर तो है ही है, साथ साथ में अभी आपका इजराइल ईरान वॉर भी हो गया, तो इसीलिए इन्वेस्टर्स आर गोइंग टुवर्ड्स ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की तरफ ज्यादा जाया जा रहा है, क्योंकि दैट इज सीम टू बी मोर कंफर्टिंग एंड more you can say beneficial. So returns from gold from last years have been the highest as compared to the other assets in class. तो आप कह सकते हैं गोल्ड has 37% growth in last 1 year, and निफ्टी और सिल्वर से, सिल्वर only you can say 2.1%.
silver not 2.1, I am saying wrong, it's silver, and silver is 5.9%, and whereas silver is not Nifty is 5.9%, and silver is 21%. Sorry about it. So my point is to say that क्या रियली में हमें गोल्ड में ही फिर इन्वेस्ट करना होगा और उससे ही होगा? तो ये एक इंडियंस जो है वो फिजिकल गोल्ड लेते हैं, हाउस होल्ड गोल्ड रिजर्व की तरह हमारा 25,000 टन है, सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं, और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में भी हम करते हैं, लेकिन हमारा मेन बात ये, तो ये एक ऑनगोइंग टॉपिक है। प्रीलिम्स के लिए सिर्फ इतना आ सकता है कि गोल्ड पे अगर मान लीजिए कस्टम ड्यूटी है तो क्यों है, और सेंट्रल बैंक जो है जैसे इवन आवर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी मतलब इट इज ऑन द बाइंग स्प्री, तो ऐसा वो क्यों करता है? सोप स्कीम्स टू फ्यूल इंडियन शिप इंजन्स, वेरी ट्रू। तो हम मैरिन शिपिंग की जब बात करते हैं तो सीरीज ऑफ मेजर्स वी हैव टेकन, वी वांट टू बी आल्सो मैरिन मैरीटाइम ग्लोबल हब। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, चाहे वो शिप बिल्डिंग है, चाहे वो रिपेयर्स है, चाहे वो रिसाइकलिंग है, चाहे वो इंश्योरेंस है, चाहे वो टेक्निकल मैनेजमेंट है, स्टाफिंग है, क्रूइंग है, मैनिंग है, आर्बिट्रेशन है, सो सारे क्रिटिकल गैप को पूरा करने की बात है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि हम भी जापान, साउथ कोरिया, चाइना, जो कि 90% ग्लोबल शिप बिल्डिंग है, और 50% तो चाइना के पास ही है, तो उसका डोमिनेंस है। लेकिन हम भी अब चाहते हैं कि हम उस दिशा में बढ़ें। इंडिया इज पावरिंग ऑफ इट शिप इंजन, तो हमारी एक पॉलिसी आ रही है। फिर उसके बाद हम लिक्विडिटी की बात भी करते हैं उसके अंदर कि हम पुट इन करेंगे, क्योंकि हमारा शेयर राइट नाउ तो लेस देन 1% है ग्लोबल शिप बिल्डिंग मार्केट। सो मल्टी प्रॉन्ग मैरीटाइम स्ट्रेटेजी है, ताकि हम 2030 तक एटलीस्ट टॉप 10 में तो आए। तो गवर्नमेंट जो है मिशन लेके आ रही है शिप रिपेयर के, रिसाइकलिंग के, फाइनेंस के, इंश्योरेंस के, आर्बिट्रेशन के, और आप ये कह सकते हैं कि हम एमयूज भी साइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्वे के साथ हमने साइन किया। प्राइवेट शिप बिल्डर्स आर आल्सो जॉइनिंग इन। गार्डन रीच शिपयार्ड बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स हैव साइंड डील्स विद जर्मनीज कास्टन रेटर। तो ये एग्जांपल्स हैं कि कैसे हम अपने आप को उस तरफ पुश कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा रिलैक्स होकर सोचना होगा मेंस के लिए, और आप उन पॉइंट्स को फिर नेचुरली लेके आ सकते हैं। तो विद दिस पर्सपेक्टिव वी कैन से दैट जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जो मैंने हाथ लगाए हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड डेफिनेटली वी आर कवरिंग द मेन सिलेबस through our newspaper sessions, which are really helpful to you if you are listening and making your notes simultaneously side by side, which you have to put for evaluation when we discuss further. Thank you very much for being with us on Ansarkari, and see you in the next session.